Hello friends, so I am back with my new lecture, that is your GS mains third topic, paper third topic, that is the nuclear energy program in India and its current status. So I was previously telling you in my last lecture that I will be taking a lecture related to energy crisis and all that thing, but before taking energy crisis lectures I will be taking the nuclear energy and all types of energy. We will study in detail all types of energy, and then we will study the energy crisis issue and how the energy crisis issue can be resolved or can be mitigated. So you must know the nuclear energy. That is very important as far as your mains examination point of view, because nuclear energy is a renewable source of energy, as you all know, and government is focusing very much on this technology to sorry. So government is focusing very much on this technology to become advanced and to contribute a large amount of electricity production in India, because as you already know that nuclear energy is a renewable source of energy. So basically the thing is, it is a renewable, so that means ki it can provide the electricity to India for many decades to come, and it is also less polluted, or you can say very 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 less polluted source of energy. So government is already focusing upon this technology, nuclear technology, to contribute a large percent contribution in electricity production and in energy production. So we will the nuclear sorry. So we will be studying this program in India and what is the current status of the program, means current status and the future scenario of this program, what government is thinking about, how it will take program ahead in the future, and how nuclear energy can be made to contribute as much as possible in electricity production in India. So starting with my lecture. So just a small introduction. Nuclear energy, you already know that it has the potential to become an important source of India's energy mix, given its economic affordability in the long run and environment friendly. So as I already told you, that is economically affordable also and environment friendly. It is less polluted or very less polluted as compared to other sources of energy, and it is also economically affordable. Currently economically affordable means because it is a renewable source of energy, so in more decades to come it is not going to be depleted in India. So currently nuclear energy makes up around only 3% of India's energy mix. केवल 3% अभी कंट्रीब्यूशन है इस एनर्जी का हमारे टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, एंड इट हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम 20 to 25% ऑफ इंडियाज एनर्जी मिक्स बाय 2050. पोटेंशियल है कि ये 20 से 25% इसका कंट्रीब्यूशन इंडिया में हो जाएगा बाय 2050. अभी केवल 3% है. As of March 2020, India has only 22 operable reactors with 7 more under construction. तो अभी 22 अंडर ऑपरेशन है जो ऑपरेशनल है, और 7 और हैं जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है और जो इन नियर फ्यूचर ऑपरेशनल हो जाएंगे. तो जस्ट अ फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए फॉर ए मेंस एग्जाम. द कंट्री हैज एस्टिमेटेड 3 लाख to 8,50,000 टन्स ऑफ थोरियम. इतना थोरियम हमारे देश में है. क्वाइट प्रोबेबली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व. माना जाता है कि लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम लाइज इन इंडियाज. कहाँ पे लाई करता है, जैसे मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला, जो ये समुद्र किनारे जो सैंड होता है ना केरला में, वहाँ पे माना जाता है. तमिलनाडु में भी माना जाता है कि वो सैंड के वहाँ पे ये थोरियम जो है पाया जाता है, और सैंड की अगर आप माइनिंग करोगे तो दैट इज कॉल्ड मोनाजाइट सैंड्स. इंडिया हैज इनसफिशिएंट यूरेनियम. पता है आपको इंडिया में इनसफिशिएंट यूरेनियम रिजर्व्स हैं, केवल 1 से 2% है. जितने भी ग्लोबली यूरेनियम रिजर्व्स ग्लोबली सिचुएटेड है, इंडिया में केवल 1 से 2% है. बट इज एंडॉयड विद वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, विच कंस्टिट्यूट अबाउट 30% ऑफ ग्लोबल रिजर्व. थोरियम के रिजर्व्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, यूरेनियम के कम हैं.
ठीक है, ये जस्ट स्मॉल इंट्रोडक्शन हो गया। अब क्या एडवांटेजेस क्या न्यूक्लियर एनर्जी के। अब न्यूक्लियर प्लांट्स आप जानते हैं कैन प्रोवाइड दी बेस लोड, ये बेस लोड प्रोवाइड कर सकते हैं, कैन प्रोवाइड दी बेस लोड। न्यूक्लियर प्लांट्स कैसे बेस लोड, मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है जहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है वहाँ पे अभी कोयले के थ्रू मोस्टली प्रोडक्शन कोयले के से अभी होता है, लेकिन ये बेस लोड ये दे सकता है, न्यूक्लियर एनर्जी भी दे सकती है जो भी कोयला देता है, कोल देता है। दे गिव ए स्टडी स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डे एंड नाइट, जस्ट लाइक कोल और गैस, जैसे कोल देता है और गैस देता है, ऐसे ही स्टडी स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसको बोलता हूँ बेस लोड न्यूक्लियर एनर्जी इसी की तरह दे सकता है। माना जाता है विंड और सोलर नहीं दे सकता। विंड तो ऑब्वियसली तभी देगा ना जब विंड चलेगी, सोलर तभी देगा जब दिन होगा। ये डेफिनेटली विंड और सोलर जो है ये डेफिनेटली जो एनर्जी है मच चीपर प्रोड्यूस करते हैं, बट देयर पावर सप्लाई इज इरेगुलर पावर सप्लाई है। विद गैस नॉट अवेलेबल, गैस आप जानते हैं गैस रिजर्व हमारे देश में बहुत कम है। एंड कोल इन ऑन इट्स वे आउट, मतलब कोल क्योंकि डिप्लीशन हो रहा है और मानना जा रहा है कि 2050 तक कोल खत्म हो जाएगा हमारे देश में ड्यू टू रीजंस ऑफ कोस्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग कंसर्न। और उसके अलावा कोल के और भी कंसर्न्स हैं, कोस्ट कंसर्न है, हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग कंसर्न है। न्यूक्लियर इज समटाइम्स रिगार्डेड एज द सेवियर न्यूक्लियर को माना जाता है कि सेवियर की तरह भारत देश में न्यूक्लियर को आप यूज़ कर सकते हैं। अब क्या एडवांटेजेस क्या है, इट प्रोवाइड्स कार्बन फ्री पावर, कार्बन फ्री पावर देता है ये, बिकॉज नो ग्रीन हाउस गैसेज आर इमिटेड इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड इन दिस वे इन्वायरमेंटल कॉस्ट आर सिग्निफिकेंटली लेस। ठीक है ना। हाँ, रेडियो एक्टिव वेस्ट की जो प्रॉब्लम है वो हम बात करेंगे इसके अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी ये लेक्चर केवल हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बात करेंगे। बट आप जान लीजिए कंपैरेटिवली इट इज़ वेरी सेफर इन द सेंस सेफर टू एनवायरमेंट। क्वांटिटीज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल नीडेड आर कंसिडरेबली लेस देन थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, क्वांटिटी चाहिए न्यूक्लियर फ्यूल की टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इट इज़ लेस रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10,000 मेगावाट जनरेशन करना है कोल से, तो ये 30 to 35 मिलियन टन्स ऑफ कोल चाहिए। बट न्यूक्लियर फ्यूल कितना चाहिए, 300 to 350 मिलियन ओनली टन्स, ये 30 to 35 मिलियन टन, तो इतना डिफरेंस है। इट जनरेट्स वेरी लिमिटेड वेस्ट भी इसमें कम जनरेट होता है इन क्वांटिटी, बट वो हजार्डस होता है, वो डेफिनेटली हम इसकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बट ये वेस्ट काफ़ी लिमिटेड जनरेट करता है इन क्वांटिटी, दो फार मोर हजार्डस इन क्वालिटी। ठीक है, ये एडवांटेज है, मोटे मोटे आपको पता होनी चाहिए। इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की बात करते हैं। इंडिया इज ए लार्जेस्ट इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। ठीक है ना, अपना खुद का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है जो कि न्यूक्लियर NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा गवर्न है। ए स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन फाउंडेड इन 1987 और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आती है ये NPCIL। सो इट इज़ अ गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज विच एक्चुअली गवर्न दी न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इन इंडिया। तो बेसिकली जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है ना, ये NPCIL उसको चलाती है, उसको रन करती है। सो ठीक है ना, मतलब बेसिकली न्यूक्लियर पावर जनरेशन इसके अंडर में होता है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन। टू एक्सप्लोइट थोरियम रिजर्व्स, अब थोरियम रिजर्व्स को एक्सप्लोइट करने के लिए, जो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर HJ भाभा कंसीव 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, 3 स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम कंसीव किया, विच इज़ मेंशन इन दी नेक्स्ट स्लाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जिनको काफ़ी लोगों को मुझे लगता है पता होगा, जिनको नहीं पता वो एक बार समझ लें। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोग्राम इज अंडरटेकन बाय NPCIL, पहला स्टेज जो है वो NPCIL उसको गवर्न कर रहा है। और सेकेंड स्टेज दैट इज भाविनी, दैट इज भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, उसको गवर्न कर रहा है फॉर फास्ट फीडर रिएक्टर। फर्स्ट स्टेज में प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, इसको जो है NPCIL गवर्न करता है। और सेकंड स्टेज इज भाविनी, दैट इज योर भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, वो उसको गवर्न करता है। ठीक है, पहला स्टेज NPCIL गवर्न का। अभी केवल हमारे पास पहला स्टेज ही है, ज़्यादातर क्या है ही है। फास्ट फीडर रिएक्टर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी सेकंड स्टेज अभी चालू है, अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोसेस है, बट पहले से सारे अभी पावर प्लांट अंडर NPCIL है। इंडिया नाउ हैज कैपेसिटी टू बिल्ड कम्प्लीटली इंडिजिनस प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स। जैसे मैंने बोला, पहला स्टेज इज प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, और इंडिया के पास पूरी कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजी है कि वो इसको डेवलप कर सकता है, प्लांट्स इसका कंस्ट्रक्शन कर सकता है, और ये प्लांट्स अभी ऑपरेशनल भी हैं 22 जो मैंने आपको बताए। दीज आर सपोर्टेड मेनली बाई 2 रिसर्च सेंटर, 2 रिसर्च सेंटर्स हैं हमारे पास, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे बॉम्बे,
जो मुंबई में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु। ये 2 रिसर्च सेंटर्स हमारे देश में न्यूक्लियर एनर्जी के। ठीक है, ये 3 स्टेजेस हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम की। तो हम पहली स्टेज पढ़ते हैं, 3 स्टेजेस हैं। तो बेसिकली मैं आपको समझा दूं ये 3 स्टेजेस क्यों की गई। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि हमारे देश में क्या है ना, थोरियम रिजर्व ज़्यादा है, न्यूक्लियर रिजर्व्स कम, यूरेनियम रिजर्व्स कम है। अब थोरियम रिजर्व्स आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि थोरियम जो है ना फर्टाइल मटेरियल है, फर्टाइल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, फिसाइल नहीं है। तो उसमें 2 चीज़ें हैं अगर आप समझेंगे तो, फर्टाइल और फिसाइल। तो फर्टाइल वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकता, ये डायरेक्टली जो एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता। तो पहले इसको फिसाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है या एनर्जी जनरेट कर सकता है। तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है थोरियम, ये डायरेक्टली आप नहीं यूज़ कर सकते न्यूक्लियर पावर प्लांट में, क्योंकि अगर आपने न्यूट्रॉन्स जो इसमें बम्बार्ड किए थोरियम में, तो डेफिनेटली थोरियम फिसाइल में कन्वर्ट तो हो जाएगा उन थोरियम उससे, बट उससे एनर्जी तो जनरेट नहीं होगी। तो एनर्जी जनरेट करने के लिए पहले इसको फिसाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए डॉक्टर एच.जे. भाभा ने 3 स्टेज का सोचा, ताकि कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाए ताकि ये पहले फिसाइल में कन्वर्ट हो जाए और फिसाइल को फिर फीड किया जाए न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ताकि उससे फिर एनर्जी जनरेट कर पाए। अब वो क्या है पहले हम समझ लेते हैं 3 स्टेज। तो पहली स्टेज क्या है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की, PHWR, दैट इज प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें फ्यूल यूज होता है एनरिच यूरेनियम, यूरेनियम यूज होता है नेचुरल अकरिंग यूरेनियम, जिसमें आपके 2 आइसोटोप्स होते हैं नेचुरली अकरिंग, दैट इज यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235। सो हम देख लेते हैं, जो कंसिस्ट ऑफ यूरेनियम 235 विच इज फिसाइल, रिमेनिंग यूरेनियम 238 विच इज फर्टाइल। तो मैक्सिमम तो फर्टाइल वाला है और मिनिमम जो बहुत ही 0.7% है दैट इज योर फिसाइल। और मॉडरेटर हैवी वाटर है, दैट इज इसलिए इसको हैवी वाटर रिएक्टर बोलते हैं, और कूलेंट है लाइट वाटर। अब इसमें क्या होता है इस हैवी वाटर रिएक्टर में, यूरेनियम 238 जो है वो प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होता है मैं आपको बताऊं, समझा देता हूं मैं आपको, मैं एक डायग्राम से समझाऊंगा, आप पहले इसको देख लीजिए, एक डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा। यूरेनियम 238 प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है, अब प्लूटोनियम 239 ये फिसाइल है। तो पहले स्टेज से क्या रिजल्ट आता है, केवल प्लूटोनियम 239 और जो यूरेनियम 238 बच गया अनडिप्लेटेड, जो अनडिप्लेटेड यूरेनियम 238 है वो, प्लस प्लूटोनियम 239, 235 तो कंज्यूम हो गया आपका, जो 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 न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया और एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 235 इज कन्वर्टेड टू इनटू न्यूट्रॉन्स एंड एनर्जी, 238 इज कन्वर्टेड टू प्लूटोनियम 239 प्लस अनडिप्लेटेड यूरेनियम 238। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट स्पेंट फ्यूल at first stage consists of polonium 239 and significant amount of 238 which did not get any neutron to get converted in plutonium. This fuel then, अब ये जो 238 प्लस 239 बच गया, ये हम सेकेंड फेज में लेकर जाते हैं और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को इसको एज ए इनपुट दे देते हैं। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है सेकेंड स्टेज में, इसमें 238 और 239 जो लेफ्ट है वो हम इसमें डालते हैं। इसमें कोई मॉडरेटर नहीं है, मॉडरेटर उसमें क्या था, हैवी वाटर था, इसमें मॉडरेटर कोई नहीं है, कूलेंट उसमें लाइट वाटर था, इसमें सोडियम है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, पोलोनियम अब इसमें देखेंगे तो पोलोनियम 239 और यूरेनियम 238 है। अब पोलोनियम 239 तो फिसाइल है, सो इसमें क्या, पोलोनियम 239 फिसाइल है तो वो एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है ना, ऑब्वियसली एनर्जी जनरेट कर सकता है पोलोनियम 239, फिसाइल आप डाल रहे हो। अब 238 जो है दैट इज ऑल्सो कन्वर्टेड टू पोलोनियम 239। ठीक है ना, पोलोनियम 239 न्यूट्रॉन जनरेट करेगा प्लस एनर्जी जनरेट करेगा। अब उससे जो न्यूट्रॉन जनरेट होंगे वो हम 238 में बम्बार्ड करेंगे और वो फिर क्या करेगा, यूरेनियम 238 वो फिर से जो है 238 जो है पोलोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं, ये मोर फ्यूल जनरेट होता है क्योंकि पोलोनियम 239 से एनर्जी जनरेट हो रही है और 238 से प्लूटोनियम जनरेट हो जाता है, पोलोनियम नहीं प्लूटोनियम सॉरी।
फॉर द सेकंड स्टेज इज क्रूशियल फॉर थर्ड स्टेज। अब ये सेकंड स्टेज है, इसका रिजल्ट क्या रहा, इसमें प्लूटोनियम से आपका एनर्जी जनरेट हो रहा है और 238 जो है प्लूटोनियम, तो इसका प्लूटोनियम और जनरेट हो जाता है इसमें। और साथ में इसमें क्या करते हैं, एक तो प्लूटोनियम जनरेट हो रहा है बहुत सारा, और दूसरा एक इसमें क्या करते हैं, थोरियम 232 जो थोरियम के रिजर्व्स है ना, वो भी इसमें थोड़े डाल देते हैं। अब उससे क्या होता है, इसमें क्या है, थोरियम क्योंकि मैंने आपको बताया फर्टाइल, तो थोरियम में जब न्यूट्रॉन बम्बार्ड होते हैं तो थोरियम कन्वर्ट हो जाता है आपका यूरेनियम 233 में। सो इट इज़ क्रूशियल फॉर थर्ड स्टेज। सो अब इस स्टेज में थोरियम भी डालते हैं, थोरियम यूरेनियम 233 वो जो कि फिसाइल है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ थोड़ा थोरियम डालते हैं, पूरा नहीं पूरा डालते हैं, उससे यूरेनियम 233 हमें थोड़ा मिल जाता है। तो ठीक है, तो इसमें यूरेनियम भी थोड़ा मिल जाता है हमें। तो प्लूटोनियम मिल रहा है हमें 239 और यूरेनियम 233 जो कि दोनों फिसाइल है। अब थर्ड स्टेज जो होता है, इसमें अगेन थोरियम रिजर्व्स हैं हमारे पास, तो थोरियम इसमें देते हैं और यूरेनियम 233 जो सेकंड से बचा है वो इसमें डालते हैं। ठीक है, तो अब यूरेनियम जो है फिसाइल है, ये न्यूट्रॉन एनर्जी जनरेट करता है और थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट कर देता है और यूरेनियम फिर अगेन एनर्जी में जनरेट होता है। तो ये एक साइकिल चलती रहती है, फिर फर्दर भी रिजल्ट इन यूरेनियम 233। इन द फाइनल स्टेज ए मिक्स ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम फ्यूज द रिएक्टर, जैसे मैंने आपको बोला, द थोरियम ट्रांसम्यूट्स टू यूरेनियम 233 विच पावर्स द रिएक्टर। फ्रेश थोरियम कैन रिप्लेस द डिप्लीटेड थोरियम इन द रिएक्टर कोर मेकिंग इट एसेंशियली ए थोरियम फ्यूल्ड रिएक्टर। ठीक है ना। Therefore, as you know that thorium is not fissile and cannot be used directly to trigger nuclear reaction. तो इसलिए हम सेकंड स्टेज में डालते हैं ताकि यूरेनियम 233 जनरेट हो जाए। बट इट इज फर्टाइल एंड व्हाट मेक्स इट न्यूक्लियर फ्यूल इज द फैक्ट दैट इट्स आइसोटोप थोरियम 232 कैन बी कन्वर्टेड टू यूरेनियम 233 विच इज फिसाइल। ठीक है ना। तो सेकंड स्टेज में थोरियम को डालते हैं ताकि यूरेनियम 233 कुछ मिल जाए और 233 हमें मिलेगा जब सेकंड स्टेज से, तो वो हम थर्ड स्टेज में यूज़ करते हैं और थोरियम उसमें डालते हैं। थोरियम 233 यूरेनियम 233 दोनों डालते हैं और थोरियम कन्वर्ट होता रहता है यूरेनियम 233 में और यूरेनियम 233 आपका एनर्जी जनरेट करता रहता है। तो इसको एक डायग्राम से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेचुरल यूरेनियम आपको मिला, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई और जो डिप्लीटेड यूरेनियम है और 230 और प्लूटोनियम वो यहाँ से निकल जाएगा। प्लूटोनियम निकला और डिप्लीटेड यूरेनियम। अब प्लूटोनियम जो है वो आपका एनर्जी जनरेट करेगा और डिप्लीटेड यूरेनियम अगेन प्लूटोनियम बन जाएगा। तो प्लूटोनियम दिखाया है इसमें, साइकिल बनती रहेगी और थोरियम इसमें देते हैं ताकि यूरेनियम 233 बन जाए। 233 इसमें फीड कर देंगे, इसमें थोरियम भी फीड करेंगे, 233 यहाँ से जो आया। अब थोरियम से अब यूरेनियम 233 इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी और थोरियम विल बी कन्वर्टेड टू यूरेनियम 233 एंड यूरेनियम 233 इसमें फीड होता रहेगा ताकि इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे। सो दिस इज प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। ये कमर्शियल चल रहा है ऑलरेडी, ये अभी नहीं चल रहा है स्टेज सेकेंड, अभी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज में, अभी कलपक्कम में ये ऑपरेशनल होना है, अभी तक नहीं हुआ है। अब देखो कब तक होता है। ये 30 साल में 300 गीगावाट हमें एनर्जी दे पाएगा और ये 12 गीगावाट दे पाएगा। लेकिन असली एनर्जी हम इससे मिलेगी, दैट इज़ 500 गीगावाट एनर्जी हमें मिल जाएगी इससे। और हमारा टारगेट क्या है अभी? हमारा टारगेट है अराउंड आई सपोज इट इज़ अराउंड 60 to 70 गीगावाट। अभी तो केवल हमारे पास 6 गीगावाट है, 60 to 70 है हमारा 50 ईयर्स में। ठीक है। सो दिस इज दी 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब ये देखिए, मान ली थोरियम हम यहाँ डाल देते, अब तो थर्ड स्टेज में डाला है, यहाँ डाल देते तो कैसे होता? थोरियम जो है वो भी फर्टाइल, नेचुरल यूरेनियम वो फर्टाइल। ठीक है। तो यूरेनियम और थोरियम अगर इसमें दे देते तो यूरेनियम, एक तो पहली बात तो ये है कि यूरेनियम बहुत कम है हमारे पास, थोरियम ज़्यादा है, 1-2% है यूरेनियम, तो यूरेनियम तो ख़त्म हो जाएगा पहले ही। थोरियम कैसे आप फर्टाइल कैसे करोगे, फिसाइल कैसे करोगे? थोरियम को फर्टाइल से फिसाइल कैसे करोगे? यूरेनियम तो आपका डिप्लीट हो जाएगा, 1-2% है। तो पहले इससे एम्पल अमाउंट ऑफ प्लूटोनियम जनरेट करते हैं और यूरेनियम 233 जनरेट करते हैं फिसाइल, जो कि फ्यूचर में फिर प्लूटोनियम पे जाएगा, प्लूटोनियम से फिर ये जनरेट होएगा, सॉरी यूरेनियम 233 जाएगा थोरियम पे और फिर थोरियम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। एक तो प्रॉब्लम ये है कि थोरियम यहाँ पे नहीं दे सकते क्योंकि इसमें 238 भी है और थोरियम भी है, इतना सारा लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टाइल होगा मटेरियल, तो फिसाइल में आप कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ना डिप्लीटेड प्लूटोनियम तो आपका फिसाइल है, बस ये डिप्लीटेड यूरेनियम ही है जो फर्टाइल है। तो इसलिए ये 3 स्टेज बनाया गया ताकि
थर्ड स्टेज में केवल फिसाइल आए थोरियम के पास, फर्टाइल मटेरियल कोई ना रहे। तो 233 जनरेट कराया गया है जानबूझ के, ताकि फिसाइल जनरेट हो और थोरियम को फीड किया जाए, ताकि वहाँ पे केवल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो और थोरियम जो है यूरेनियम 233 में कन्वर्ट होकर फिसाइल कन्वर्ट होता रहे। तो करंट स्टेटस क्या है न्यूक्लियर प्रोग्राम का? जैसे मैंने आपको बताया 22 ऑपरेशनल है, जिसमें केवल 6 गीगावाट है अभी जनरेट हो रही है, जो कि 2 या 3% है, 2.5-3%। सो 18 रिएक्टर्स में प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है 18 और 4 लाइट वाटर रिएक्टर है। अब ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये 500 मेगावाट का है, जो कि अभी कलपक्का में मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन में अंडर कंस्ट्रक्शन है। द ऑनगोइंग डेवलपमेंट ऑफ 300 मेगावाट एडवांस हैवी अब ASWR एट बार। अब ये ASWR है, ये भी डेवलप कर रहे हैं थर्ड वाला, बट ये अभी डेवलप नहीं कर रहे हैं, केवल ये अभी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए केवल लैब में इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। टू डेवलप एक्सपर्टाइज वाले लैब में करके इसका एक्सपर्टाइज डेवलप किया जा रहा है, जिससे थोरियम का यूटिलाइजेशन शो कर पाए एंड डेमोन्स्ट्रेट कि सेफ्टी किस तरीके से आप इंश्योर करेंगे। क्योंकि थोरियम में क्या है ना, थर्ड स्टेज में बहुत रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लीक होते हैं और वो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं थोरियम वाले में, तो वो पहले इसको आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। उसके अलावा थोरियम बेस्ड सिस्टम्स कैन बी सेटअप ऑन कमर्शियल स्केल ओनली आफ्टर ए लार्ज कैपेसिटी बेस्ड ऑन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जब तक बहुत लार्ज कैपेसिटी के बिल्ड नहीं होंगे, क्योंकि उससे हमें यूरेनियम 233 मिलेगा, जब तक वो हमें लैम्पल अमाउंट में नहीं मिलेगा तब तक थोरियम का कोई इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को जनरेट करना को टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करना पड़ेगा, जो कि समझ में आ रहा है कि 2050 तक कर पाएंगे हम अच्छी तरीके से। तो उसके बाद हम थोरियम बेस्ड सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेज आप भूल जाइए, फ्यूचर में होएगा, अभी तो फर्स्ट स्टेज पे ही है, सेकंड स्टेज अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2050 तक वो होगी और उसके बाद थर्ड स्टेज में हम एंटर करेंगे। सो 22 प्लांट्स हैं जो कि 2.5% मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। इंडियन एनर्जी पॉलिसी 20 गीगावाट और 60 गीगावाट बाई 2032 तक ये निसाज कर रही है हमारी एनर्जी पॉलिसी, कि ये न्यूक्लियर एनर्जी को हमें ऐसा इंक्रीज करना है। सरप्लस प्लूटोनियम और यूरेनियम 233 फॉर थोरियम रिएक्टर्स फ्रॉम ईच फास्ट रिएक्टर कैन बी यूज टू सेटअप मोर सच रिएक्टर। जैसे मैंने बोला कि जितना आपको सरप्लस आएगा उतना आप यूरेनियम 233 उतना आप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जनरेट कर सकते हो, सरप्लस प्लूटोनियम और यूरेनियम 233 एंड ग्रो द न्यूक्लियर कैपेसिटी इन ट्यून विद इंडिया नीड्स फॉर पावर। सेकंड स्टेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शलाइज कर सकते हो, क्योंकि क्या होगा ना, सेकंड स्टेज में प्लूटोनियम आया और 238 आया, तो प्लूटोनियम जनरेट हो रहा है, उतना ही आप प्लूटोनियम आप और न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाओ, जिसमें आप और जो भी जनरेट हो रहा है वो आप सेकंड उस वाले पावर प्लांट में डाल दो। तो जितना एक्सेस प्लूटोनियम जनरेट होगा वो आप उसमें डालते रहो और उससे आप एनर्जी जनरेट कर सकते हो। अब इसमें जो एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर है, जो मैं आपको बताया थर्ड स्टेज में यूज़ करेंगे, जो इनोवेटिव कंसेप्ट है, विच विल एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज, एसेंशियली टू एडवांस थोरियम यूटिलाइजेशन विदाउट अंडरगोइंग सेकंड स्टेज ऑफ द 3 स्टेज प्रोग्राम। तो बेसिकली ASWR को बोल रहे हैं कि सेकंड स्टेज में एंटर करके सीधा फर्स्ट से थर्ड में एंटर करना हो, कि फर्स्ट में आपका जो है प्लूटोनियम जनरेट हो गया, प्लूटोनियम और थोरियम को एक साथ आप डाल दें, प्लूटोनियम और थोरियम को, तो प्लूटोनियम तो उसमें लाइट वाटर कूलेंट होगा और हैवी वाटर मॉडरेटर होगा। इट इज़ फ्यूल्ड बाई पिक्सल प्लूटोनियम एंड थोरियम विच इज साइजेबल अमाउंट ऑफ पावर कमिंग फ्रॉम। तो प्लूटोनियम आपका जनरेट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, और प्लूटोनियम से जो न्यूट्रॉन्स जनरेट होंगे वो यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या है ना, प्लूटोनियम और यूरेनियम रहेगा, तो एक नहीं रहेगा, कई सारे अलग अलग फिसाइल मटेरियल होंगे, तो इसलिए सेकंड बनाया गया था, ताकि यूरेनियम 233 जनरेट होता रहे और यूरेनियम 233 ही फिर आप थर्ड में लेकर जाओ। लेकिन एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर में आप प्लूटोनियम भी डाल रहे हो और यूरेनियम 233 और थोरियम भी डाल रहे हो, तो सेकंड स्टेज स्किप कर सकते हो। सो करंट स्टेटस की जैसे मैं बात कर रहा था कि टोटल 7 न्यूक्लियर रिएक्टर्स अंडर कंस्ट्रक्शन, ये बेसिकली बढ़ा रहे हैं अपना जस्ट एक जितना ज़्यादा आप जनरेट कर पाओ इलेक्ट्रिसिटी। प्रेजेंटली इंडियाज कैपेसिटी 6 गीगावाट, 2032 तक 22 टारगेट है। India's Department of Atomic Energy informed India's Parliament that 21 new reactors with a total installed capacity of 15 गीगावाट, तो 2031 तक कहा गया है कि 15 और आ जाएगा, 6 भी है, तो 22 जो हमारा टारगेट है वो हम अचीव कर लेंगे 2032 तक। 22 नहीं, एक्चुअली 60 है, बट 22 ही कर पाएंगे हम, ठीक है ना। 22 तो हमारा 2021 तक था, बट वो नहीं हो पाएगा, कहना 2031-32 तक जाएगा। एडवांटेजेस क्या हैं थोरियम के ओवर अदर न्यूक्लियर फ्यूल? थोरियम रिएक्टर्स प्रोड्यूस फॉर लेस वेस्ट देन प्रेजेंट डे रिएक्टर्स, ठीक है।
थोरियम रिएक्टर्स बहुत कम वेस्ट देते हैं एज कम्पेयर टू जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, इसमें यूरेनियम आप भेजते हो, तो थोरियम रिएक्टर्स में वेस्ट कम जनरेट होता है। दे हैव द एबिलिटी टू बर्न अप मोस्ट ऑफ द हाईली रेडियो एक्टिव लॉन्ग लास्टिंग एक्टिनाइट। जो एक्टिनाइट्स होते हैं ना, जो पीरियोडिक जो और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जनरेट होते हैं, वो यूरेनियम वाले फर्स्ट से तो जनरेट होते हैं बट थोरियम में कम जनरेट होते हैं। दैट मेक्स न्यूक्लियर वेस्ट फ्रॉम लाइट वाटर रिएक्टर्स ए न्यूसेंस टू डील विद। तो इसमें कम जनरेट होता है कि उनको फिर बर्न करना पड़ता है हमें फर्स्ट स्टेज में, लेकिन इसमें नहीं जनरेट होता, तो इसमें ऑलरेडी बर्न हो जाता है। तब मिनिस्कुल वेस्ट दैट इज जनरेटेड, लेकिन जो जनरेट होता है मिनिस्कुल वेस्ट ही वो काफ़ी डेंजरस होता है, कम जनरेट होता है बट वो डेंजरस होता है। दैट इज जनरेटेड इज टॉक्सिक फॉर ओनली, और जो जनरेट होता है दैट इज टॉक्सिक फॉर ओनली 3 और 400 ईयर्स। यूरेनियम वाला कई हज़ार साल तक टॉक्सिक होता है। थोरियम रिएक्टर्स चीपर होते हैं बिकॉज दे हैव हायर बर्न अप, जो मैंने आपको बताया चीपर होंगे क्योंकि सारे के सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स बर्न हो जाते हैं। थोरियम रिएक्टर्स आर सिग्निफिकेंटली मोर प्रोलिफरेशन रेसिस्टेंट देन प्रेजेंट रिएक्टर्स। मतलब आप प्रोलिफरेशन नहीं कर सकते थोरियम रिएक्टर्स का ज़्यादा, रेजिस्टेंट है। क्यों? बिकॉज यूरेनियम 233 जो प्रोड्यूस करता है थोरियम रिएक्टर ऑल्सो कंटेन्स यूरेनियम 232 जो कि बहुत बहुत हाईली रेडियो एक्टिव होता है। डेट मेक्स इट डिफिकल्ट टू वर्क विद। उसके अलावा थेलियम 208 भी जनरेट होता है, 232 भी जनरेट होता है, थेलियम 208 ये बाई प्रोडक्ट है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज है, इज इक्वली डिफिकल्ट टू हैंडल। तो ये जो दोनों है बहुत हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं और ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से ये इनको बढ़ाना, थोरियम रिएक्टर्स को प्रोलिफरेट करना बहुत डिफिकल्ट है। As is the case with generation of electricity from uranium, there will be no emission of greenhouse gases from thorium also, and it will be a clean source of energy. Thorium is said to be more efficient and gives less radioactive waste than uranium and plutonium, जैसे मैंने आपको बोला। Also plutonium जो होता है ना, वो जो सेकंड स्टेज में फर्स्ट बीटर रिएक्टर में या फर्स्ट में यूरेनियम प्लूटोनियम का वेस्ट जनरेट होता है, जो जनरेट होता है उसमें से आप प्लूटोनियम निकाल सकते हो, अलग कर सकते हो और वो बॉम्ब के लिए यूज़ कर सकते हो। बट टीएम वाले रिएक्टर में आप नहीं कर सकते ऐसा कोई भी, क्योंकि इतने हाईली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उसके बाई प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। तो प्लूटोनियम को अलग कर सकते आप बॉम्ब बना सकते हो, इसमें नहीं कर सकते। तो इसलिए थोरियम जो है प्रोलिफरेशन रेसिस्टेंट है, वाइल जो आपको प्लूटोनियम है दैट इज प्रोलिफरेशन प्रोन है और बॉम्ब बना सकते हो उससे आप। तो एडवांटेजेस हैं थोरियम के। इसके अलावा एक्सट्रैक्टिंग यूरेनियम 233 फ्रॉम द स्पेंड थोरियम, इसके इश्यूज़ क्या है? जैसे मैंने आप बताया डोंटिंग चैलेंजेस हैं 233 एक्सट्रैक्ट करना। क्यों? क्योंकि बाई प्रोडक्ट है, इस थोरियम से का बाई प्रोडक्ट है यूरेनियम 232 विच इमिट्स हाईली रेडियो एक्टिव गामा रेज। रिसर्चर्स एट द बार्क जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया अपनी लैब में ये प्रोसेस, बट डूइंग सो एट स्केल, डेमोन्स्ट्रेट तो कर दिया लेकिन लार्ज स्केल पे करने के लिए विल रिक्वायर फैसिलिटीज विद हैवी रेडिएशन शील्डिंग एंड कॉम्प्लेक्स रोबोटिक्स टू आइसोलेट वर्कर्स को आइसोलेट करना पड़ेगा और हैवी रेडिएशन शील्डिंग इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे ताकि जो हैवी रेडियो एक्टिव रेडिएशन इमिट हो रही हैं उनसे बचा जा सके। तो ये इश्यूज़ हैं थोरियम के साथ। इवन इंडिया न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट एडमिट्स द कंट्री इज अनलाइकली टू जनरेट सब्सटेंशियल एनर्जी फ्रॉम थोरियम अंटिल एटलीस्ट 2050, जो मैंने बोला, क्योंकि सेकेंड स्टेज ही 2050 तक प्रॉपर्ली ऑपरेशनल होगी, उसके बाद ही हम थोरियम पे जंप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये विद दिस आई एंड माई लेक्चर। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर लूँगा न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर ही, बट मैं बात करूँगा कि क्या क्या रिफॉर्म्स न्यूक्लियर एनर्जी में रिक्वायर्ड है और कैसे हम न्यूक्लियर वेस्ट के लिए अलग एक लेक्चर बनाऊँगा, बट अभी रिफॉर्म्स क्या क्या रिक्वायर्ड है उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब कर लें और काइंडली प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। थैंक यू सो मच।